Such a joy to be in God's presence as we end the year and we step into the new year. It's a day of celebration. 2022, God has kept us through this year with all the challenges that we faced because of the various things that were happening. A time that we can come and say thanks to God this evening. आइए हम लोग शुरुआत करेंगे प्रार्थना से. Before we start, I'd just like to read from Psalm 103, verse 2. It's a very known verse, and it's just a reminder to all of us. Bless the Lord, O my soul, and forget not all his benefits. Amen. भजन संगीत 103 दूसरा वचन से पढ़ के सुनाएंगे. यहोवा को धन्य कहो और उसके किसी उपकार को न भूलना. तो आज हम यहाँ इकट्ठा हुआ इसलिए कि परमेश्वर को हम उपकार दें. So let's surrender this whole evening and ask God and call upon the presence of the Lord in our midst. आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे. Thank you, Jesus. Heavenly Father, we bless your name and we thank you for the many benefits and your never-ending grace and unconditional love for us. You alone are worthy of all our worship. पिता परमेश्वर, आपका उपकार और अनुग्रह के लिए धन्यवाद. केवल आप ही हमारा आराधना का योग्य है. Amen. We welcome you, Lord, amongst us this evening, God, as we have gathered together on this last day of 2022 to celebrate your faithfulness and the gift of love that you have lavished upon each one of us. परमेश्वर, हम आपका स्वागत करते हैं हमारे बीच, आपके विश्वास योग्यता को मनाने के लिए. आमेन. As we enter 2023, Lord, we believe your word and we hold on to your word as in Isaiah 52:12 that says, the Lord will go before us and he will be our rear guard. Amen. Let's believe and hold on to this word. 2023, the Lord will go before us and he will be our rear guard. Isaiah 52:12 वचन में लिखा है, यहोवा तुम्हारे आगे आगे अगुवाई करता हुआ चलेगा और वो हमारे पीछे की रक्षा करता चलेगा. Amen. Holy Spirit, we call upon you to fill this place with your presence, O God. Lord, open our eyes that we may see you. Our ears, God, that we may hear you. Lord, and as we worship you, may our worship be out of the devotion of our heart. We ask, God, that you would inspire your servant as he shares what is upon his heart that you have spoken to him this evening, God. पवित्र आत्मा, हमें आपका उपस्थिति का ज़रूरत है ताकि हम आपके पवित्रता देखें और आपका आवाज़ सुने. We acknowledge, God, that you are great. You do mighty things, more than we can ask or imagine. So God, we ask this evening, let your kingdom come and your will be done in our midst. हम मानते हैं कि आप ही महान हैं और महान कार्य करने वाले परमेश्वर है. इस जगह पर आपका राज आए और आपका इच्छा पूरा होए. ये प्रार्थना हम मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं. आमीन. Bible says, I will praise you, O Lord, with my whole heart. मैं अपने
संपूर्ण मन से यहोवा की स्तुति करता हूँ। and I will tell of your marvelous works. हे यहोवा, तूने जो अद्भुत कर्म किए हैं, And मैं उन सब का वर्णन करूँगा। I'll be glad and rejoice in you. तूने ही मुझे इतना आनंदित बनाया है। And I will sing praise to your name, O Most High. हे परम परमेश्वर, मैं तेरे नाम की प्रशंसा गीत गाता हूँ। Man, God has done so many good things this year. How many of you guys agree to this? Yeah, God has done great and marvelous things in our lives. And we know our God who can do more things in this coming. God has blessed us with so many things this year and He can do much more in the coming year. Let's believe and just thank the Lord for what He has done this past year, this year, 2022. We thank you, Lord. We bless your name, Lord. Oh, Lord, we thank you, Lord. आइए प्रभु को धन्यवाद देंगे इस साल के लिए जो प्रभु ने कार्य किया हमारे जीवन में। Bless your name. We bless your name. ये जीवन है तेरा प्रभु जी, तू ही राज कर हो तेरी मर्जी। ये जीवन है तेरा प्रभु जी, तू ही राज कर हो तेरी मर्जी। संग तेरे हम गाते जाए, आए मुसीबत मुस्कुराए। संग तेरे हम गाते जाए, आए मुसीबत मुस्कुराए। तेरे भवन में आनंद की भरपूरी है। यीशु तू संग तो जीवन में संतुष्टि है। तेरे भवन में आनंद की भरपूरी है। यीशु तू संग तो जीवन में संतुष्टि है। Come on, let's shake a little. Come on. थोड़ा नाचेंगे प्रभु के लिए।
आनंद की भरपूरी 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 आनंद की भरपूरी मेरा प्याला उमड़ उमड़ के भरे मेरा जीवन शुद्ध खुशी से भरे मेरे भवन में आनंद की भरपूरी है यीशु तू संग को जीवन में संतुष्टि है तेरे भवन में आनंद की भरपूरी है यीशु तू संग को जीवन में संतुष्टि है तेरे भवन में तू संग मेरे जीवन में आनंद की Bless your name, Lord. Bless your name, Lord. Praise your name. आइए प्रभु की स्तुति करें हम आवाज उठा के प्रभु की स्तुति करें हम शिरंगरे Bless your name, Lord. Bless your name, Lord. I raise a hallelujah in the presence of my enemy. I raise a hallelujah louder than the unbelief. I raise a hallelujah. My weapon is a melody. I raise a hallelujah. Heaven comes to fight for me. I'm gonna sing in the middle of the storm, louder and louder. You're gonna hear my praises roar up from the ashes. Hope will arise. Death is defeated. The King is alive. I raise a hallelujah with everything inside of me. I raise a hallelujah. I will watch the darkness flee. I raise a hallelujah in the middle of the mystery. I raise a hallelujah.
Sing a little louder. 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 This is how I fight my battles. Let's sing a little louder. This is how I fight my battles. Sing a little louder. This is how I fight my battles. Yes, Lord. Sing a little louder. This is how I fight my battles. Sing a little louder. Come on, let's do that again. This is how I fight my battles. Sing a little louder. This is how I fight my battles. Sing a little louder. This is how I fight my battles. Sing a little louder. This is how I fight my battles. Sing a little louder. It may look like I'm surrounded, but I'm surrounded by you. It may look like I'm surrounded, but I'm surrounded by you. It may look like I'm surrounded, but I'm surrounded by you. Yes, Lord. It may look like I'm surrounded, but I'm surrounded by you. This is how I fight my battles. This is how I fight my battles. Come on. This is how I fight my battles. This is how I fight my battles. गाऊंगा मैं तूफानों के बीच ऊंचा और ऊंचा तेरी महिमा के गीत नामुमकिन में से जागी उम्मीद मृत्यु है हारी जिंदा है मसीह गाऊंगा गाऊंगा मैं तूफानों के बीच ऊंचा और ऊंचा तेरी महिमा के गीत नामुमकिन में से जागी उम्मीद मृत्यु है हारी जिंदा है मेरे शत्रुओं के बीच में आवाज उठाओ, अविश्वास के सामने आवाज उठाओ, ये धुन मेरा हथियार है। आवाज उठाओ, स्वर मेरे लिए लड़े, आवाज उठाओ, मेरे शत्रुओं के बीच में आवाज उठाओ, अविश्वास के सामने आवाज उठाओ, ये धुन मेरा हथियार है। आवाज उठाओ, स्वर मेरे लिए लड़े, मेरे शत्रुओं के बीच में आवाज उठाओ, अविश्वास के सामने आवाज उठाओ, ये धुन मेरा हथियार है। आवाज उठाओ, स्वर मेरे लिए लड़े। praise is my weapon. स्तुति हमारे लिए एक हथियार है जो हमारे दुश्मन को चुप करा सकते हैं. We can silence the enemy with our praise. Yes, Lord.
anxious in anything, for He holds our tomorrow. And He's the same Lord, yesterday, today, tomorrow, the unchanging God, the God who makes promises and keeps them. धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद यीशु मसीह कि जो आप वादा करते हो परमेश्वर, आप उसको पूरा भी करते हो परमेश्वर खुदा। धन्यवाद प्रभु आपके उस वादे के लिए परमेश्वर राजा। धन्यवाद यीशु मसीह। Bless your name. Bless your name. यीशु मसीह भरोसा मेरा, तू ही सहारा है मेरा। मुश्किल समय में तू ही दिलासा, साथ रहेगा तू सदा। यीशु मसीह, यीशु मसीह भरोसा मेरा, तू ही सहारा है मेरा। मुश्किल समय में तू ही
ऊंचा हम हाथ उठाकर गाएंगे, यीशु तेरा नाम है ऊंचा। हम हाथ उठाकर Bless your name, Lord. Bless your name. We lift our hands हम अपने हाथों को उठाएंगे and we bless your name. और हम आपके नाम को आशीष करेंगे परमेश्वर राजा। We lift your name हम आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं at all times. हर समय परमेश्वर। Bless your name. हम आपके नाम को आशीष करते हैं The परमेश्वर, God who was, who is, and who is to come. जो परमेश्वर था, है और हमेशा रहेगा। Amen. आमीन। Bless this time, God, and we submit it into your hands. परमेश्वर इस समय को भी हम आशीषित करते हैं प्रभु और आपके हाथों में देते हैं। We give you all the glory, Lord. In Jesus' name we pray. आमीन। Amen. हम कृपया बैठ जाएंगे, प्लीज बी सीटेड। A very good evening, शुभ संध्या सबको। Believe that you are all doing well. हम विश्वास करते हैं कि आप सब अच्छे हैं, स्वस्थ हैं, और हम यहाँ हैं प्रभु भोज के लिए हम उत्साहित करने वाले हैं सबको। We here to encourage you on the Lord's table and let's just prepare our hearts, हमारे हृदय को हम तैयार करेंगे प्रभु भोज में भाग लेने के लिए। गुड इवनिंग एवरीबॉडी, शुभ प्रभात सभी को। हम देखते हैं सॉरी शुभ संध्या, आई एम सॉरी, so used to the morning service, sorry. Okay, so we see in the Gospels that Jesus just before his death instituted the communion, the Lord's table as we know it. And we also see in the book of 1 Corinthians chapter 11 verses 23 to 26 that Paul speaks to the church of Corinth. He's encouraging them about the Lord's table, the communion. हम सुसमाचार में देखते हैं कि यीशु मसीह अपनी मृत्यु से पहले, क्रूस पर जाने से पहले वो प्रभु भोज स्थापित करता है। और हम ये भी देखते हैं पहला कोरिन्थियों 11वें अध्याय में कि पौलुस कोरिन्थ की कलीसिया को उत्साहित कर रहा है प्रभु भोज के बारे में, वो सारी बातें बता रहा है उनको। और मैं पढ़ूंगी पहला कोरिन्थियों 11:23 से 26। I'll read it in Hindi. We can see it on the OHP in English. मैं हिंदी में पढ़ूंगी। पहला कोरिन्थियों 11:23 से 26। जो परंपरा मैंने आपको सौंपी है वह मुझे प्रभु से प्राप्त हुई थी, अर्थात जिस रात को प्रभु यीशु पकड़वाए गए उन्होंने रोटी ली और धन्यवाद की प्रार्थना करने के बाद उसे तोड़ा और कहा, ये मेरा ही देह है जो तुम्हारे लिए है, यह मेरी स्मृति में किया करो। इसी तरह भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया और कहा, यह कटोरा मेरी ही रक्त द्वारा स्थापित नया विधान है, जब जब तुम उसमें से पियो तो यह मेरी स्मृति में किया करो। इस प्रकार जब जब आप यह रोटी खाते और यह कटोरे में से पीते हैं तो प्रभु के आने तक उनकी मृत्यु की घोषणा करते हैं। आमेन। सो वी सी टू एलिमेंट्स इन द कम्युनियन। हम दो पदार्थ या दो धातुओं को देखते हैं जो
प्रभु भोज में हम उसको स्वीकार करते हैं या हम उसमें भाग लेते हैं। एक है रोटी और दूसरा है प्याला। So we see two elements in the communion, the Lord's table. One is the bread and one is the cup. अब जो रोटी है वो प्रभु यीशु के शरीर का प्रतीक है। The bread signifies the body of Christ. और यीशु मसीह क्या कह रहे हैं इस वचन में? पौलुस यीशु मसीह जो कह चुके थे उसके बारे में कुरिन्थ की कलीसिया को बता रहा है। वो कह रहे हैं कि ये लो, ये मेरा शरीर है, इसमें तुम सहभागी बनो। आमीन। ये शरीर मैंने तुम्हारे लिए तोड़ा है। या जीसस इज सेइंग, ही सेड टेक ईट, दिस इज माय बॉडी which was broken for you. His body was broken for you, beloved. उसका शरीर आपके लिए तोड़ा गया था। Amen. तो ये समय है कि ये प्रभु भोज को बहुत ही एक निजी समय में हम ले। Let us take it as a very personal space, as a personal moment in our lives this evening. Even as we're about to enter the new year, we've come here today with grateful hearts, with thankful hearts. जैसे हम नए साल में प्रवेश कर रहे हैं, हम यहाँ पर आए हैं एक धन्यवादित हृदय लेकर। Amen. तो हमें स्मरण करना है। तो यीशु का शरीर जो हमारे लिए तोड़ा गया था, even if there was one person and that was you on the face of this earth, Jesus would have come and died for you. अगर एक व्यक्ति भी होता, अगर आप अकेले इस धरती पर होते, फिर भी यीशु मसीह आकर आपके लिए अपना बलिदान दे देता। आमीन। उसका शरीर जो आपके लिए तोड़ा गया था ताकि आप पूरी तरह से चंगाई पा सकें। His body was broken for you to receive healing. His body was broken so that you would be made whole. His body was broken so that you don't live in shame. You don't live in poverty. You don't live in sickness. You don't live in brokenness. उसका शरीर तोड़ा गया था ताकि आप एक शर्मनाक जिंदगी से मुक्त हो जाए, आप गरीबी से मुक्त हो जाए, आप टूटेपन से मुक्त हो जाए। आमीन। आप बीमारी से मुक्त हो जाए। So even this evening when we're coming to Jesus, let us remember, just like Jesus and Paul said, remember this. इसका स्मरण करो। और जैसे हम आ रहे हैं इस शाम को, हम स्मरण करते हैं कि यीशु मसीह अपने शरीर को हमारे लिए उन्होंने तोड़ा। दूसरा पदार्थ है प्याला। आमीन। दूसरा पदार्थ है प्याला जो प्रभु यीशु के रक्त को दर्शाता है, यह प्रभु यीशु के रक्त का प्रतीक है। और ये प्याला है नए वाचा का, नई विधान का। और यीशु ने पुराने नियम को जब क्रूस पर वो मरा, उसने पूरी तरह हर एक न्याय को उसने समाप्त कर दिया और एक नई वाचा हमारे साथ बांधी है। Jesus, when he died on the cross, he fulfilled the requirement of the old covenant and he established a new covenant with us, priyo. So what is this new covenant? ये नई वाचा या नया विधान क्या है? It is an inner transformation that cleanses us from sin. ये एक अंदरूनी बदलाव है जो हमें पाप से मुक्त करता है। यीशु का लहू हमारे पाप को धो देता है। It's about God's word and His will for us. ये प्रभु यीशु या परमेश्वर के वचन के बारे में है और उसकी इच्छा के बारे में है जो हमारे अंदर कार्य करता है। It's about a new and intimate relationship with God. ये नई वाचा एक बहुत ही निजी और नए रिश्ते के बारे में जो हम परमेश्वर के साथ स्थापित करते हैं उसके बारे में है। तो जैसे पौलुस ने यीशु के शब्द कुरिन्थ की कलीसिया को कहते हुए उनको उत्तेजित किया, हम आज आपको उत्तेजित करना चाहते हैं प्रियो कि स्मरण करो। Remember, do this in remembrance of me. Remember that Jesus shed His blood for the forgiveness of our sin. There is no forgiveness, beloved, without the shedding of blood. यीशु मसीह ने अपना लहू बहा दिया ताकि हमें क्षमा मिले, और लहू बहाने के बिना पापों की क्षमा प्राप्त नहीं हो सकती है। आमीन। तो जैसे हम प्रभु भोज में भाग ले रहे हैं इस वक्त,
हमारे हृदय को तैयार करें प्रियो। एक धन्यवादित हृदय के साथ आए, आप प्रभु से बातें करें, आप अपने और प्रभु के बीच में बातें करें और प्रभु से कहें, प्रभु मैं स्मरण करता हूँ, मैं स्मरण करती हूँ। लॉर्ड आई रिमेंबर दिस इवनिंग एंड आई एम सो ग्रेटफुल, और मैं बहुत ही धन्यवादित हूँ। आमेन। क्यों ना हम 30 सेकंड ले, हमारे हृदय को हम स्थिर करें इस वक्त। Let's take about 30 seconds to just still our hearts, each one of us, before the Lord. Just going to lead you in a time of prayer, and then we can partake together. मैं आपकी प्रार्थना में अगुवाई करूंगा, उसके बाद हम सब मिलकर इस रोटी और प्याला में भाग लेंगे। Let's bow our heads in prayer. हमारे आपको हम झुकाएंगे इस वक्त। Lord Jesus, I bow before you in humility and ask you to examine my heart today. परमेश्वर, मैं झुकता हूँ, अपने हृदय को मैं नम्र करता हूँ तेरे सामने, और मैं मांगता हूँ परमेश्वर के मेरे हृदय को तू जांच। Show me anything that is not pleasing to you. प्रभु, ऐसा कुछ भी अगर है जो तुझे प्रसन्न नहीं करता, मुझे दर्शा आज। Reveal any secret pride, any unconfessed sin, any rebellion or unforgiveness that may be hindering my relationship with you. प्रभु, मैं मांगता हूँ कि ऐसा कोई भी रुकावट है जो मुझे रोक रहा है, प्रभु तेरे साथ एक रिश्ता जोड़ने के लिए, प्रभु मुझे दर्शावो। The price you paid covered me for all time, and my desire is to live for you. परमेश्वर, हम मांगते हैं कि प्रभु जो कीमत प्रभु तूने चुकाई मेरे लिए, उसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ, और प्रभु मेरी एक ही इच्छा है कि मैं तेरे लिए जीऊँ परमेश्वर। As I take the bread representing your life that was broken for me, I remember and celebrate your faithfulness to me and to all who will receive you. प्रभु, मैं मांगता हूँ इस वक्त कि जैसे इस रोटी में मैं भाग लेता हूँ परमेश्वर, जो तेरे देह को दर्शाता है, प्रभु मैं याद करता हूँ और मैं उत्सव मनाता हूँ तेरी विश्वास योग्यता के लिए मेरे जीवन में। प्रभु, थैंक यू फॉर योर एक्सट्रावेगेंट लव एंड योर अनमेरिटेड फेवर। प्रभु, तेरे प्रेम के लिए और तेरे अनुग्रह के लिए मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू दैट योर डेथ गेव मी लाइफ, abundant life now and eternal life forever. धन्यवाद प्रभु। प्रभु, तेरे मरने से प्रभु मुझे जीवन मिला है, प्रभु तेरे मृत्यु से मुझे जीवन मिला है, साधारण नहीं लेकिन बहुतायत का जीवन और अनंत काल का जीवन। As you instructed your disciples, I too receive this bread in remembrance of you. प्रभु, जैसे तूने तेरे चेलों को सिखाया, आज हम भी उसी तरीके से प्रभु इस रोटी में भाग लेते हैं। You may eat the bread right now. And in the same way, as I take this cup representing your blood poured out from a splintered cross, I realize that you were the supreme sacrifice for my sin, past, present and future. प्रभु, जैसे मैं इस प्याला में भाग लेने वाला हूं प्रभु, प्रभु तेरे लहू जो तूने बहाया मेरे लिए उस क्रूस पर, प्रभु मैं इस वक्त प्रभु उसे याद करता हूं, और मैं जानता हूं परमेश्वर के जो तूने बलिदान मेरे लिए दिया परमेश्वर, कि मेरे पापों के लिए जो था, जो है और जो होने वाला है, उस सब के लिए प्रभु तूने मुझे क्षमा की है। Because of your blood shed for me and your body broken for me, I can be free from the power and the penalty of sin. प्रभु, जो तेरे देह के लिए और जो तूने प्रभु लहू बहाया मेरे लिए, प्रभु मैं इस वक्त विश्वास करता हूं कि मैं स्वतंत्र हूं परमेश्वर, और हर पाप की जो शक्ति है मेरे जीवन के ऊपर से तोड़ी गई है। प्रभु, थैंक यू फॉर योर विक्ट्री ओवर डेथ। प्रभु, धन्यवाद कि तू विजय हुआ है हर मृत्यु के ऊपर से। यू टुक द डेथ दैट आई डिजर्व। प्रभु, जो मृत्यु प्रभु मेरे लिए थी, प्रभु उसको तूने तेरे ऊपर ले लिया। यू टुक माई पनिशमेंट एंड टुडे आई रिमेंबर एंड सेलिब्रेट द प्रेशियस गिफ्ट ऑफ लाइफ यू गेव मी through the blood that you shed. प्रभु, आज
जो जीवन तूने मुझे दिया है परमेश्वर, प्रभु तेरे प्रभु वरदान के द्वारा परमेश्वर, वो भेंट के द्वारा प्रभु, उसके लिए हम आपको कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं. Each time I take communion, Lord, I want to recommit my life, my heart, my thoughts, my everything to you. Fill me today with your spirit, Lord. प्रभु, हर वक्त जब मैं इस रोटी और प्याला में भाग लेता हूँ परमेश्वर, मेरे जीवन को मैं एक बार फिर तुझे समर्पित करता हूँ. मेरे हृदय को, मेरे सोचों को, मेरे विचारों को, हर चीज जो मेरा है, मैं उसे समर्पित करता हूँ. आज प्रभु तेरी आत्मा से मुझे भर दे. इन योर प्रेशियस नेम वी प्रे, आमेन. तेरे नाम में हम प्रार्थना करते हैं, आमीन. यू कैन पार्टेक ऑफ द कप. So once again, good evening and a very warm welcome to our Thanksgiving service. And I believe we are all here with thankful hearts and expected hearts for what our Father has done in 2022 and what He will do in 2023. But before we move ahead, we would like to welcome all those of you who are here for the first time. We are so glad that you're spending New Year's Eve with us. Jesus said, rejoice, and again I say rejoice. And our sole reason to rejoice is Him. And to celebrate Him and what He did for us, we meet every Sunday at 10:30 a.m. in this hall itself. आप सभी का स्वागत है इस शाम की सभा के लिए. और जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं पहली बार, हम बेहद खुश हैं कि आप अपना वक्त हमारे साथ बिता रहे हैं. हमारी हिंदी कलीसिया अंधेरी वेस्ट, अंधेरी ईस्ट और बोरीवली ईस्ट में है. और अधिक जानकारी के लिए आप हमें संपर्क कर सकते हैं. हफ्ते में एक बार हम छोटे ग्रुप, जिसे हम लाइफ ग्रुप या घर कलीसिया कहते हैं, उसमें मिलते हैं. और अगर आप उसमें जुड़ना चाहते हैं तो अधिक जानकारी के लिए आप हमें संपर्क कर सकते हैं. हर शुक्रवार सुबह 7 से 7:30 तक हम जूम पे एकजुट होकर प्रार्थना में जुड़ते हैं. और हर सप्ताह हम अलग अलग विषयों पे प्रार्थना करते हैं. तो हम आपको प्रोत्साहित करते हैं कि आप उसमें जुड़ें. और अगर आपको जानकारी चाहिए तो आप अपने पासवान या आपके लाइफ ग्रुप लीडर को संपर्क कर सकते हैं. Please note that there will be no English service tomorrow morning, that is January 1st. We will directly meet on January 8th, and we would have Pastor Shelton and Melissa Davidson with us. We would like to encourage you that if you are led, you can give your tithes and offerings and use the online way, that is net banking and the church website. For those who want to give now physically and are gathering right now, we would be passing the offering bags after some time. And if you are here as a guest, please do not be under compulsion to give your offering. You feel free to pass the offering back to the next person. Now 1 Chronicles 16:8 says, "Oh, give thanks to the Lord, call upon His name, make known His deeds among the people." बाइबल इस बात पे जोर देता है कि प्रभु जब कोई कार्य करता है तो दूसरों को प्रोत्साहित करने के लिए हमें उसकी गवाही देना चाहिए. And this year, I believe God has been teaching me and about His sovereignty, that He is sovereign over life and He is in control, and He sometimes let things happen in our life. So the following lines are as an offering to Him. तो अर्ज किया है, भ्रम है तेरा कि हर हालात पे तेरा बस है. भ्रम है तेरा कि हर हालात पे तेरा बस है. भ्रम है तेरा कि तुझे अपने दम पे हासिल सब है. भ्रम है तेरा कि तेरी योजनाओं पे नहीं चाहिए उसकी मंजूरी. भ्रम है तेरा कि हर रिश्ते में उसकी मौजूदगी नहीं है ज़रूरी. आ उस भ्रम को तोड़ और समझ कि उसका अस्तित्व था सबसे पहले, और हर एक कण सब कुछ रचाया है उसने उसी के लिए. ऐसा कुछ नहीं है जो रोक सके उसे, जो पाना चाहे वो. यहोवा ही है जो चाहे सराहे सिखाए समझाए हमको. Amen. So अपनी गवाही शेयर करने के लिए मैं बुलाना चाहूँगा रेणुका पवार जी को. Can I have Renuka on stage, please?
शुभ संध्या कलीसिया। माफ़ी चाहना चाहती हूँ, थोड़ा गला खराब है। चाहे तो मैं किसी को यहाँ पे खड़ा करके अपनी गवाही पढ़वा सकती थी, लेकिन मैं चाहती थी कि मैं खुद गवाही दूँ अपने जीवन के बारे में। नाम रेणुका पवार, रहने के लिए जोगेश्वरी वेस्ट। मेरे परिवार में हम 5 लोग रहते हैं। मैं इस कलीसिया से 12 साल से जुड़ी हूँ। मुझे आज खुशी हो रही है, मैं यहाँ पर हूँ मेरी अपनी गवाही लेकर। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ कि परमेश्वर ने मेरे जीवन में महान गवाही बनाया। आज जो मेरा जीवन है वो परमेश्वर ने दिया है। दिसंबर 3 तारीख 12:30 बजे दोपहर के जो पानी का मोटर होता है, हमारे एरिया में पानी नहीं आ रहा था 2 दिन से, तो मैं पानी नहीं भर पा रही थी। लेकिन 3rd दिन मुझे ऐसा लगा कि जाकर किसी से पानी लेना चाहिए, तो मैंने पानी भरा। भरने के बाद मैंने अपनी मम्मी के घर पे जाके पानी का मोटर 2 बार ट्राई किया, बट पानी नहीं आ रहा था। जो मेरा भतीजा था वो कंटाल के मोटर नहीं बंद किया, तो किसी ने मुझे बोला कि पानी आ रहा है। तो वहाँ पर जाकर देखती हूँ तो पाइप निकल के नीचे पड़ा है। मुझे नहीं पता था कि मोटर चालू है, तो वहाँ पर मैंने उसको आवाज़ दिया कि मोटर चालू करो, बट उसने पहले से स्विच चालू रखा था। तुरंत मैंने क्या किया, पाइप लेकर मोटर को हाथ लगाया और वहाँ पर मैं चिपक गई। चिपकने के बाद वहाँ पर कोई भी नहीं था, कोई भी नहीं था, ना मम्मी थी ना मेरे कज़न, कोई आजू बाजू में कोई भी नहीं था। वहाँ से मेरी कज़न भाभी गुजर रही थी। परमेश्वर ने मुझे आवाज़ दिया उसे पुकारने के लिए। मैंने उसे नाम से पुकारा, उसका नाम है ललिता। तो वो पीछे मुड़कर देखी तो उसको ऐसा लगा कि मैं गिर गई हूँ, तो उसने मुझे उठाने की कोशिश की, बट मेरा शौक उसको लग रहा था। तो मैं कह रही थी कि मैं गिरी नहीं हूँ, मुझे शौक ने पकड़ा है, जाकर स्विच बंद करो, बट उसको समझ में नहीं आ रहा था। और कोई लेडी आई वहाँ पे, उन्होंने भी मुझे उठाने की कोशिश की, बट उनको ये समझ में नहीं आ रहा था कि जाकर स्विच बंद करना चाहिए। तो पूरे 3 मिनट हो चुके थे, तो मेरे माइंड में आ रहा था कि अब रेणुका तुम्हारा समय आ गया परमेश्वर के पास जाने का, अभी तुम्हें प्रार्थना करना चाहिए। तो उसी समय मैंने प्रार्थना स्टार्ट किया। परमेश्वर, आज तक मैंने जो भी पाप किया, गुनाह किया, उसके लिए मुझे क्षमा कर प्रभु। परमेश्वर, मुझे थोड़ा सा स्वर्ग में जगह दे देना। बस मैंने प्रार्थना स्टार्ट किया था तो मेरे 3 बच्चे वहाँ पर दौड़ कर आते हैं, मुझे वहाँ पे शौक में तड़पते हुए देखते हैं, चिल्ला चिल्ला कर रो रहे वहाँ पे, मेरी मम्मी को बचा लो बचा लो। तो उसी समय मैंने परमेश्वर से कहा, परमेश्वर मुझे मेरे खुद के लिए नहीं प्रभु, मुझे इन बच्चों के लिए बचा ले परमेश्वर, क्योंकि मेरे जाने के बाद मेरे बच्चों का कोई नहीं परमेश्वर, मेरे बच्चे अनाथ हो जाएंगे। फिर मैंने जैसे ही प्रार्थना स्टार्ट किया, पूरे 5 मिनट्स हो चुके थे। बहुत मैंने अन्य भाषा में भी प्रार्थना कर रही थी, बट मेरी प्रार्थना कोई सुन नहीं रहा था, बट मैं मन से दिल से प्रार्थना कर रही थी। 5 मिनट्स पूरे हो चुके थे। वहाँ पर कोई व्यक्ति आता है तो स्विच बंद करता है, तो तुरंत मुझे करंट छोड़ के मैं नीचे गिर जाती हूँ। तो मेरे टीथ, मेरा नोज़, मेरे मुंह से ब्लड, नाक से ब्लड पूरे निकलने लगता है। ये सब बातें मुझे तो पता नहीं। फिर अड़ोस पड़ोस वाले आए, मुझे उठाए। वहाँ पे उठाने के बाद सब ने देखा कि मेरा दिल नहीं चल रहा था, मेरी सांसें नहीं चल रही थी। सबको लगा कि रेणुका अभी हमें छोड़कर चली गई है। तो मेरे बच्चे, मेरे परिवार वाले रोने लगे कि हमारी बच्ची अभी हमें छोड़ के चली गई। लेकिन मैं उनकी आवाज़ सुन पा रही थी, लेकिन मैं बात नहीं कर पा रही थी। फिर उसके बाद कोई व्यक्ति वहाँ से अड़ोस पड़ोस में आए, बोले कि हम सबसे पहले इन्हें हॉस्पिटल पहुँचाते हैं। फिर उसके बाद मुझे पता नहीं क्या हुआ, मैं होश में नहीं थी, फिर कुछ भी आवाज़ नहीं सुन पा रही थी।
तुरंत मुझे सिटी हॉस्पिटल लेकर गए। वहाँ पे लेके जाने के बाद डॉक्टरों ने चेक किया तो मेरा हार्ट चल रहा था। ECG वगैरह करवाया तो बोले ज़िंदा है भी। तो आधा घंटे के बाद मुझे होश आता है, तो मैं वहाँ पे देख रही हूँ कि मैं कहाँ पर हूँ। तो मेरे फैमिली वाले ने बताया कि आप हॉस्पिटल में हो। फिर मुझे याद आता है कि मुझे शॉक लगा था। फिर तुरंत मैंने परमेश्वर को धन्यवाद दिया, कहा परमेश्वर सचमुच तू भला है, तू महान है परमेश्वर। अब जो ये मेरा जीवन है प्रभु, ये मेरा खुद के जीवन नहीं परमेश्वर, सिर्फ तेरे राज के लिए, तेरे सेवा के लिए इस्तेमाल होगा परमेश्वर। प्रियो, मैं पास्टर से माफ़ी मांगना चाहती हूँ। मैं और 1 मिनट लेना चाहूँगी, क्योंकि कभी कभी ना इंसान जब संसार में होता है ना, स्वार्थी बन जाता है, खुदगर्ज बन जाता है। परमेश्वर ने हमारे जीवन में जो किया रहता है ना, हम सब कुछ भूल जाते हैं। कुछ नयापन आ जाते तो हम उसके पीछे दौड़ते हैं, वो संगत में नहीं रह पाते हैं। लेकिन परमेश्वर हमसे बहुत प्रेम करता है, वो कभी हमें छोड़ता नहीं है। लेकिन हम भटक भी जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, परमेश्वर हमें कभी गिरने नहीं देता है। ये जो एक्सीडेंट होने वाला था, मैं काफ़ी संघर्ष से गुजर रही थी, मैं बहुत घुट रही थी अंदर से। ये एक्सीडेंट होने से 2 दिन पहले, जैसे सैटरडे को मेरा एक्सीडेंट हुआ, थर्सडे के दिन मैं कहीं जा रही थी, किंग सर्कल, बैंड्रा और माइम के बीच में एक शमशान आता है, वहाँ पे मेरी ट्रेन रुकती है। तो मैं वहाँ पे देख रही हूँ, तो मेरी आत्मा कह रही है, क्योंकि मैं खुद भटक गई थी थोड़े दिनों के लिए, तो मेरी आत्मा वहाँ पे कहती है, रेणुका देख वहाँ पे जो पैसों के पीछे भाग रहे हैं, हर एक लोग वहाँ पे राग बन के खड़े हैं। जो खुदगर्ज लोग हैं वहाँ पे राग बन के खड़े हैं। तुम क्यों ऐसे कर रही हो? तुम पीछे क्यों मुड़ रही हो? तो मैंने डिसीज़न लिया, नहीं, हमें ऐसे नहीं करना चाहिए। हमें परमेश्वर ने जो हमारे जीवन में किया है, वो चीज़ों को हमें नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि इस संसार में हमने परमेश्वर को नहीं चुना है, परमेश्वर ने हमें चुना है। हम कहते हैं ना कि क्यों हमारा ऐसा हुआ, क्यों चल रहा है हमारे जीवन में। नहीं, हर एक चीज़ परमेश्वर की योजना रहती है, और सही समय पे, सही वक्त पे हर एक चीज़ होता है। तो मैं भी हर एक लोगों को यही कहना चाहती हूँ, हर एक सुख दुख में परमेश्वर के साथ में रहे। परमेश्वर हर समय, हर घड़ी हमारे साथ में रहता है। थैंक यू सो मच। Okay, next to share the testimony, I have Ian and Annette Banerjee. Can we have them on stage, please? Good evening, church. My name is Ian Banerjee, and this is Lynette Banerjee, my wife. I'm going to share my testimony in English, and after that, Nishit will summarize it in Hindi. तो मैं मेरी गवाही अंग्रेजी में बोलूँगा, उसके बाद भाई निश्चित उसे हिंदी में दोहराएंगे। लिखा हुआ। So, it was during the start of COVID that our business had taken a bad hit. Also, this was the same time that we had lost our dear Farah. This was in March 2020. And so Shannon and Anaya were staying with us. This year, 2020, was a very difficult year for everyone. And we personally saw how God provided for us in spite of all the losses. Our recruitment business was slow during COVID, and so my business partner proposed that since there's not much of activity in the business, and also that we are in a challenging place in our family, that I don't get involved and I focus on the family. At that time, it sounded like a very kind gesture.
only to realize that in December 2021, when we planned to restart our business, this is the time he had schemed to take control of the entire business and kept us out of operations and accounts, and completely to the extent that we were no longer welcome in the new office. We started this business in 2017. And since it was our dream, we both were very much involved from the very start. As a new business, we did not hire many staff, but we did all the hiring interviews ourselves, endless hours to grow this business. At that time, our business partner was not very physically involved, as he was having a high commitment job, and we respected that. However, we always sought to honor him. We secured his place, his position in our office. Once the business picked up in 2019, we had a larger team and a lot of growth. We had several recruitment drives which got us working many times, late, post-midnight hours. So it was very challenging for us, especially for me, because I'm a mother of 2 kids. And my time away from them, it was a very painful sacrifice. Now, with this sacrifice in the background, and knowing that our partner had chosen to deceive us and take over the business, this was extremely painful. So this led me to feel very helpless, and I had sleepless nights because of this deception, as I did not know how to go ahead, as all seemed lost. But in the early Jan 2022, I was encouraged to take time out and seek God, and started visiting St. Mary's Khandala to pray. I went to ask God a solution, but I was confronted by God about my own heart and a lack of His fear and of loving Him truly. During the course of the year, I visited Khandala more than half a dozen times. And during this time, I felt the love of God, the correction of God, the encouragement of God, and the strategy of God. This helped me deal with my discipline, my fear, my anxiety, and I also received specific guidance from the Lord on how to go about with this business. This business was my dream and the fruit of our labor. When our partner suggested in 2020 that we focus on the family and not get very involved in the business, that was a blessing in disguise for me. I was able to use that time to have extended times of reading God's word, praying for my challenges. So in December 2021, when this deception started to unveil, I took on to fasting and praying for this issue. During this time, God gave me numerous promises from His word, that He assured me that I should believe in Him and trust in His promises, and have faith that He would do the impossible for us, that our Lord will fight for us, and we should hold our peace. He also reminded me of my sweet fellowship I had grown into with. That became far more valuable to me than losing my dream business. And this did not give me any pain, as I was able to get far more joy in spending time with God and taking care of my family. So I started to pray to God to send a mediator between us and our partner and us, to discuss this situation and help us to get a proper share in this business. And God answered that prayer. He sent a lovely couple to help us. The lady, who is a close friend of our partner, got a dream about the business and confronted him, which led to him coming to negotiate with us. Now, during this negotiation, my partner kept changing his approach and backed out of the negotiation many times, until God guided us to take certain steps, which revealed that our partner had not only blocked us in the business, but had even conceited his deceit by creating a fraudulent company in the same name of the current company, and was planning to secretly move the clients to this company
and commit a fraud. Additionally, he did not even bill the clients for 6 to 7 months so he could together move all the funds to this new company. This exposure gave us a big advantage in negotiations as we now had reason to pursue this legally. During this time, we were taking counsel from a senior church leader, as advised by Pastor Shannon, who, being well versed in business, challenged us to walk the Abrahamic blessing by offering Lot which direction of the land he wanted for himself. We believed that we received this guidance from the Lord, and we offered our partner the choice as to which direction he would like to go instead of us pursuing this legally. He agreed to pay us out and take over the business, and we also proceeded on the work on the documentation and other legalities. However, he backed out again, and he changed his mind on signing the MOU. Now again at this withdrawal and our partner's repeated fluctuations, I cried out to God, who spoke to me clearly from Exodus chapter 12, that my partner is like Pharaoh, and that we should go on a fast as God would be sending a final plague to humble him. When we were fasting and praying and had ceased communication, at the same time, our partner, out of anxiety, called our first client, who is the firstborn in our business, who gives us 80% of the business, and advised them that he would be taking over our share, to which the client responded that they would be stopping our services in a few months. This anxiety completely gripped him. However, for some reason, he agreed to sign the MOU and now proceeded with the negotiations. We successfully signed the MOU on the 23rd of November 2022. And we stand here today to testify that God is our guide. He is our strength. He is our great deliverer. He goes ahead of us and fights our battles, and He is mighty to save. As God's word was our foundation, the blessing of the fellowship of our church family standing with us in prayer encouraged us. Worshipping God before the boardroom meetings became our strategy of victory. In our journey, we experienced that God, by giving us the understanding of His word, made us wiser than our enemies. He filled us with peace and enabled us to walk in His path of His righteousness by His grace alone. Not only do we have the assurance of His unconditional love, but His word is a living word and able to teach us, guide us, and help us overcome all our battles. To God be all the glory. Amen. Thank you, Ian and Lynette. So, संक्षिप्त में Ian और Lynette उनका एक व्यवसाय है और उस व्यवसाय में उनका एक पार्टनर भी है, बट दिसंबर 2021 में उस पार्टनर ने उसकी चालाकियों से और योजनाओं से उन्हें धोखा दिया. बट उनकी गवाही ये थी कि 2022 में कैसे उन्होंने प्रभु के साथ इंडिविजुअल टाइम बिताया, उसके साथ साथ उपवास करके भी, प्रार्थना करके भी, और कलीसिया के जो सीनियर मेंबर से भी कंसल्ट करके अभी वो जितनी परेशानियां थी वो अभी प्रभु के कारण जो उन्होंने विजडम दिया, जो उसके वजह से ये अभी सॉल्व हो चुका है. सो ग्लोरी टू गॉड. ग्रेट. थैंक यू सो मच. So to lead us in a time of Thanksgiving offering, I'll invite Pastor Arun. So we are here to give our Thanksgiving offering unto the Lord. So what we will do, we have sent some text to you all saying that भेंट डाल के हम दे सकते हैं, उसके लिए हमने गुजारिश की है. So you can keep it ready. आप उसको तैयार रख सकते हैं. And if you don't have any envelope, don't worry. अगर आपके पास कोई लिफाफा नहीं है तो चिंता करने की कोई बात नहीं. If you don't have the offering envelope, don't worry. अगर आपके पास में वो भेंट देने का जो लिफाफा नहीं है तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है. God sees the offering, not the envelope. परमेश्वर
That's a joke. ये एक मजाक था. What I want to say is, God sees your heart. मैं आपसे क्या कहना चाहता हूँ कि परमेश्वर आपके हृदय को देखता है. Okay, now I just want to lighten up this thing. That's why I said this. मैं इस माहौल को थोड़ा हल्का करना चाहता हूँ. Sorry, I run it later. Psalms 118 verse 23. भजन संहिता Psalms 118 verse 23. भजन संहिता 118. I just want to read the scripture and then we'll pray over it and then we will go further. हम लोग इस पे प्रार्थना करेंगे फिर हम आगे बढ़ेंगे. This is the Lord's doing. और ये परमेश्वर का करना है. It is marvelous in our eyes. ये सुंदर है हमारी आंखों में. I'll repeat it once again. मैं फिर से इस बात को दोहराऊंगा. This is the Lord's doing. ये परमेश्वर का करना है. It is marvelous in our eyes. और ये सुंदर है हमारी आंखों में. You know, last year we could not meet. और पिछले साल हम नहीं मिले थे. This is the Lord's doing. We could meet. लेकिन ये परमेश्वर का करना है. हम फिर से मिले हैं. The Lord's last year we could not do so many things, but we could do this year so many things. This is the Lord's doing. और पिछले साल हम बहुत कुछ नहीं कर पाए थे, लेकिन इस साल हम बहुत कुछ कर पाए हैं. ये परमेश्वर का करना है. I believe the Lord has healed broken hearts in this year. This is the Lord's doing. और परमेश्वर ने बहुत सारे टूटे हृदयों को जोड़ा है. ये परमेश्वर का करना है. I believe the Lord wants to do further in our life, and that will be, and that is the Lord's doing. और मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर और बहुत कुछ करना चाहता है और ये भी परमेश्वर का करना है. And this Psalms begins with saying, "Oh, give thanks to the Lord, for He is good. His steadfast love endures forever." और ये वचन जो हमें बताता है कि ये परमेश्वर का करना है और ये बातें हमारी आंखों में सुंदर है. You have to just translate it. This is the Lord's doing. और ये परमेश्वर का करना है. Okay, sorry. Oh, give thanks to the Lord, for He is good, and His steadfast love endures forever. और परमेश्वर को धन्यवाद दो क्योंकि वो भला है और उसका जो प्रेम है वो सदा बना रहता है. Amen. आमीन. So God is really good, तो परमेश्वर सचमुच में भला है and He will be good to us. और वो हमारे लिए अच्छा रहेगा. His love endures forever. उसका प्रेम बना रहेगा. We might have a rough year or good year, but His love is constant on our life. हमारा समय आगे या पीछे हो लेकिन उसका जो प्रेम है वो बना रहेगा. So let's hold the offering in our hands. तो आप अपने भेंटों को अपने हाथों में ले लें. You don't have to lift it up, but you can hold it in your hands. आपको उठाने की जरूरत नहीं है लेकिन उसको आप अपने हाथों में पकड़ सकते हैं. Yes. If you have not brought the offering, like I said, God sees the heart, not the money. You can do it online also. अगर आप कुछ लेके नहीं आए हैं तो आप इसको ऑनलाइन में भी कर सकते हैं. Okay, and you can get the details on our website. और आप इसकी जो बारीकियां हैं आप इसको ये आपको आपके हमारी वेबसाइट पे आप देख सकते हैं. But let us come with a grateful heart for what He has done in our life. लेकिन हम अपने धन्यवादी हृदयों के साथ में परमेश्वर के सामने आए. Come, let's look to the Lord and let's pray. और आइए हम परमेश्वर की ओर देखें और भेंट के तैयार हो जाएं. Thank you, Lord. Thank you. धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद. Father, we want to thank you for this evening. पिता हम आपको धन्यवाद करना चाहते हैं इस शाम के लिए. Here we are standing at the last day and in the last hour of this year. और इस साल की इस आखिरी दिन और इस आखिरी क्षण में हम खड़े हैं. Father, we want to take a moment and say thank you to you. और पिता हम इस क्षण में आपको धन्यवाद करना चाहते हैं. We bring our offering, O God, to you. हम अपने भेंटों को आपके सामने लेके आते हैं. And we want to say thank you for your blessings over our life. और आपको धन्यवाद करना चाहते हैं आपकी भलाइयों के लिए, आपकी आशीषों की हमारे जीवनों के ऊपर. Thank you for being with us. धन्यवाद आप हमारे साथ में बने रहे. Thank you for guiding throughout this year. धन्यवाद कि साल भर आपने हमारे अगुवाई की. And I know, Lord, you will take us through further also. और हम जानते हैं आप आगे भी हमें ले चलोगे. So we give you all the glory, Lord. तो इसलिए हम आपको सारी महिमा देते हैं प्रभु. And all the praise. सारा स्तुति देते हैं. In Jesus' name, Lord, we make this prayer. यीशु मसीह के नाम में हम ये प्रार्थना करते हैं. Amen. 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 So we all can give the offering in the offering bags. People who are watching online, you can give online. और आप
जो ऑफरिंग बैग्स आपके सामने आती हैं, आप उसमें दे सकते हैं या आप ऑनलाइन भी दे सकते हैं। So God bless you all. परमेश्वर आप सबको आशीषित करे। Request if every one of us can stand up, please. फिर एक बार मैं लौटता हूँ, मैं दौड़ता हूँ तेरे पास। फिर एक बार मैं लौटता हूँ, मैं दौड़ता हूँ तेरे पास। अपने हाथ उठाकर मैं कबूल करता हूँ, मन फिराता हूँ, दिल से कहता हूँ। अपने हाथ उठाकर मैं कबूल करता हूँ, मन फिराता हूँ, दिल से कहता हूँ। मैं तुझसे प्यार करता हूँ, मैं तुझसे प्यार करता हूँ, मैं तुझसे प्यार करता हूँ यीशु। मैं तुझसे प्यार करता हूँ, मैं तुझसे प्यार करता हूँ, मैं तुझसे प्यार करता हूँ यीशु। मुझको तू देता है, पापों से सजाएगा। मुझको तू देता है, पापों से बचाएगा। अपने हाथ उठाकर मैं कबूल करता हूँ, मन फिराता हूँ, दिल से कहता हूँ। अपने हाथ उठाकर मैं कबूल करता हूँ, मन फिराता हूँ, दिल से कहता हूँ। मैं तुझसे प्यार करता हूँ, मैं तुझसे प्यार करता हूँ, मैं तुझसे प्यार करता हूँ यीशु। मैं तुझसे प्यार करता हूँ, मैं तुझसे प्यार करता हूँ, मैं तुझसे प्यार करता हूँ यीशु। You can be seated, please. I'll invite Pastor Shannon Pinto to share the word for the new year 2023, and Lavina would be helping us in the translation to Hindi. Check. Can you hear me? कैसे सभी लोग? प्रभु की स्तुति हो। क्या हुआ, सब लोग क्यों शांत हो गए? कितने लोग खुश है कि आप प्रभु के भवन में हैं? आप हालेलुया। क्यों ना जोरदार हम प्रभु को चिल्लाकर, हम ताली बजाकर परमेश्वर को धन्यवाद दें। आमीन। प्रभु भला है, उसकी करुणा। और मेरी बहन लवीना सोच रही है कि मैं क्यों आई हूं यहाँ पर। ये पासवान के लिए मैं तो अनुवाद करने वाली थी, लेकिन खुद हिंदी में प्रचार कर रहा है। तू चांगला है ना ग? Amen. God is a good God. परमेश्वर भला परमेश्वर है। Amen. And I'm just so grateful that we are here in the house of the Lord. और मैं इतना धन्यवादित महसूस करता हूँ कि आज हम परमेश्वर के भवन में उपस्थित हैं। From millions and millions of people around the world, God chose you and me to be His child. इस संसार में इतने सैकड़ों लोग हैं, लेकिन परमेश्वर ने आपको और मुझे चुना है कि हम उसके बच्चे कहलाए। I have very short time. और हमारे पास समय बहुत कम है।
So I'm very happy that I prepared a very short message. और इसलिए मैं खुश हूँ कि मैंने आज का संदेश भी बहुत छोटा बनाया है. You will be hearing from me a lot in this new year. तो आने वाले साल में आप मुझसे बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे, हम संदेश सुनेंगे. You will even hear a lot about me in this new year. और मेरे बारे में भी बहुत सारी चीज़ें सुनेंगे आने वाले दिनों में. So there's a lot of time to talk. तो हमारे पास बहुत सारा समय होगा बात करने के But लिए. I just want to share a short directional word that I believe God has laid on my heart. लेकिन आज मैं आपको एक छोटा सा संदेश बताना चाहता हूँ जो परमेश्वर ने मेरे हृदय में डाला है, जिससे हमें आने वाले दिनों के लिए दिशा मिलेगी. I have 3 simple but powerful things to share with you. मेरे पास 3 ऐसे साधारण बातें हैं जो मैं आपसे बताना चाहता हूँ. साधारण तो है लेकिन सामर्थ्यशाली है. And I want to request you, listen to this and apply it in your life. और मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आप इसे ध्यान से सुने और अपने जीवन में इसे लागू करें. I believe that there is something very special about this night. मैं ऐसा विश्वास करता हूँ कि आज के इस रात के बारे में कोई खास बात है. God is a God of new beginnings. परमेश्वर जो है वो नए शुरुआत का परमेश्वर है. But for something new to begin, something of the old must end. लेकिन कुछ नया शुरू होने से पहले कुछ पुराना खत्म होना जरूरी है. I believe tonight some things that need to end will end. और ऐसा मैं विश्वास करता हूँ कि कुछ चीज़ें हैं जो ख़त्म होने की ज़रूरत है उन्हें, वो आज रात को ख़त्म होनी चाहिए. And so I believe that as we move into the things that God has planned for us, और मैं विश्वास करता हूँ कि जो परमेश्वर ने हमारे लिए योजना बनाई है आने वाले दिनों के लिए, we need to know what to do in order to move into those things. तो हमें आगे बढ़ने के लिए क्या करना है ये भी समझना ज़रूरी है. I'm so grateful to God that the things of God, some of the greatest things of God are not complicated. They are simple. और मैं कितना खुश होता हूँ ये सोच करके कि परमेश्वर की बहुत सारी ऐसी बड़ी बड़ी बातें हैं, लेकिन वो देखने जाएंगे तो बहुत ही सरल है और आसान है हमारे लिए. And as we do those things, और जैसे हम उन चीज़ों को करेंगे, we will see that God begins to take us ahead into the things that He has planned and purposed for our lives. तो हम देखेंगे कि परमेश्वर ने जो सारे उद्देश्य और सोचा है हमारे लिए, उसकी तरफ हम आगे बढ़ेंगे. Don't resist, surrender to God. मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आप अपने आप को परमेश्वर से दूर नहीं, लेकिन आप अपने आप को समर्पित करें. Don't try to dodge God. आप परमेश्वर से दूर भागने की कोशिश ना करें. Because the one who loves you the most is God Himself. क्योंकि जो आपसे सबसे ज़्यादा प्यार करता है वो खुद परमेश्वर है. You know, I started this year with a lot of pain. मैंने इस साल का शुरुआत बहुत ही दर्द के साथ किया था. A kind of pain that I pray you will not go through. ऐसा दर्द जो मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप में से कोई भी उससे ना गुजरे. I'm ending this year with joy. लेकिन ये साल जो है मैं बहुत ही खुशी के साथ समाप्त कर रहा हूँ. Amen. God is a God in our mourning, and God turns our mourning into rejoicing. जो हमारा परमेश्वर है वो हमारे दुख में भी हमारा परमेश्वर है और हमारे दुख को खुशी में बदलता भी वही है. So here's the first thing that I want to put before you. तो ये पहली चीज़ है जो मैं आपको बताना चाहूँगा. Thankfulness. वो है एक धन्यवादित हृदय. Choose to be a thankful child of God in 2023. मैं आपसे कहना चाहूँगा कि 2023 में आप ऐसे व्यक्ति बने, एक परमेश्वर का ऐसा बच्चा बने जो उसको हर चीज़ के लिए धन्यवाद देता है. In fact, the first thing we're going to do in this new year in just a few moments is we are going to take time to thank the Lord for all that He has done for us and all that He has given us. और इस साल के अगले साल के शुरू होने से पहले हम सबसे पहली चीज़ जो करेंगे कि हम परमेश्वर को धन्यवाद देंगे हर एक चीज़ के लिए जो परमेश्वर आगे करने वाले हैं. You know, I have shared so much on Thanksgiving in all these years. पिछले कई सालों से मैंने धन्यवाद भरे हृदय के बारे में बहुत कुछ सिखाया है आप लोगों को. My brothers and sisters, it is the key to everything that God has kept ahead of you. It is the key. मैं आपसे कहना चाहता हूँ भाइयों बहनों कि आगे जो भी परमेश्वर ने आप लिए रखा है उसका जो सबसे पहला चावी वो है कि आपका धन्यवाद भरा हृदय. Without a thankful heart and thankful lips, no one moves into the things of God in their life.
अगर आपके मन में परमेश्वर के लिए धन्यवाद नहीं है तो आप आगे नहीं बढ़ पाओगे. Years ago, I was taught you can scream, you can shout, you can howl, you can complain. But if you don't thank God, the gates of God don't open. तो कई साल पहले किसी ने मुझे सिखाया था कि तुम कितना भी चिल्लाओ, कितना भी रो, कितना भी गिड़गिड़ाओ, लेकिन जब तक आप धन्यवाद नहीं दोगे तो परमेश्वर का जो गेट है, जो उसका द्वार है, वो आपके लिए खुलेगा नहीं. For the people of Israel, it meant when they chose grumbling and murmuring instead of thankfulness, it cost them the entire inheritance that God had planned for them. तो हम देखते हैं कि जैसे जो इजरायली लोग थे, उन्होंने कभी भी धन्यवाद को नहीं चुना, लेकिन उन्होंने हमेशा कुड़कुड़ाना चुना, जिसके कारण उन्होंने बहुत बड़ा जो विरासत उन्हें मिलने वाला था उसे खो दिया था. Imagine God blocked an entire nation that He chose. He stopped them from entering the promised land, and He only allowed 2 people from that entire nation to go into the promised land because an entire nation chose grumbling and murmuring instead of thanking God. आप कल्पना करें कि परमेश्वर जिसने स्वयं इज़राइल को चुना था, उस राष्ट्र को चुना था कि वो वाचा के देश में जाएंगे, लेकिन उनके सिर्फ और सिर्फ कुड़कुड़ाने के वजह से, उनके जो बातों के वजह से परमेश्वर ने उन्हें वो नहीं दिया, लेकिन सिर्फ 2 ही व्यक्ति थे जो उस वाचा के देश में जा पाए. When I look at that story and I've gone back to that, you know, Joshua and Caleb, all that they said was, God has promised that He will give us this land. We believe that we can take it. Let's go and get it. और Simple. जब मैं वचन को पढ़ता हूँ तो मैं यही देखता हूँ कि जोशुआ और जो कैलेब थे, ये दोनों ने सिर्फ जो परमेश्वर का जो वादा था, जो उनके लिए दिया गया था, वो उसी तरफ देख रहे थे और वाचा के देश की ओर बढ़े थे. Giants will be there. वहाँ पर दानव होंगे. Battles will be there. वहाँ पर युद्ध लड़ाई जाएगी. Testings will be there. वहाँ पर परीक्षाएं होगी. Our God is greater than giants. Our God is greater than battles. Our God is greater than testings. If He said, I'm giving you the land, He is giving you the land. तो उनको सिर्फ यही पता था कि वहाँ पर दानव होंगे, लेकिन हमारा परमेश्वर परीक्षाओं, दानवों, सभी चीज़ों के ऊपर है. जिसने वादा किया है वो पूरा भी करेगा. So what does that kind of faith look like? That kind of faith looks like thankfulness. तो ये जो उनका विश्वास है वो क्या दिखा रहा था कि उनके अंदर एक धन्यवाद का हृदय था. So practically I want to tell you how to thank God. तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप सही में परमेश्वर को धन्यवाद कैसे कर सकते हैं. Repeat and rehearse the goodness of God every day in your life, beloved. On the day of Anand Mela, in the morning I told you, every day can be a celebration if every day you remind yourself and declare the goodness of God. तो मैं You lost me, but I found you. She said she lost me. I'm right here. Let's all thank God for Lavina. She's doing so well. I forgot what I said. We need to repeat and rehearse the goodness of God every day, Mole. तो मैं ये कह रहा था कि जैसे आनंद मेला की सुबह को भी मैंने कहा था कि परमेश्वर का जो भलाई है हमारे जीवन में, उसे हमें रोज़ दोहराना है और उसे रोज़ अपने आप को याद दिलाना है कि परमेश्वर कितना भला है. I was so blessed when Auntie Sheila opened the prayer this night. She quoted from Psalm 103 verse 1. Bless the Lord, O my soul, and all that is within me, bless His holy name. That verse is in my notes. Who pardons all your iniquities, who heals all your diseases, who redeems your life from the pit, who crowns you with loving kindness and compassion. He has not dealt with us according to our sins, nor rewarded us according to our iniquities. For as high as the heavens are above the earth, so great is His loving kindness towards those who fear Him. Let us not forget who our God is and all that He's done for us, all that He gives us every day of our lives, beloved. तो आइए हम कभी भी ना भूले जो परमेश्वर ने हमारे लिए किया है और जो हर रोज़ वो हमारे जीवन में करता जा रहा है. आज की सभा के शुरू होने से पहले भी शीला आंटी ने एक वचन पढ़ा जो बहुत ही आशीषित हुआ मैं उसे सुन करके. Thank God for the gift of life.
परमेश्वर का धन्यवाद है जो इस जीवन का वरदान हमें मिला है उसके लिए। Thank God for Jesus, His Son. हम धन्यवाद करते हैं यीशु के लिए जो उनका बेटा है। Thank God for your family. परमेश्वर का धन्यवाद हो आपके परिवार के लिए। Thank God for His church. आपकी इस कलीसिया के लिए धन्यवाद हो। Thank God that you have health and you have job and you have finances. धन्यवाद हो कि आपके पास काम है, आपका स्वास्थ्य है अच्छा और बहुत पैसे हैं। Thank God for the city and nation. इस शहर के लिए, इस देश के लिए हम धन्यवाद करते हैं। Let us take time to rehearse the goodness of God in our life. आइए हम समय निकालें कि परमेश्वर का जो भलाई है हमारे जीवन में हम उसे दोहराए, याद करें और अपने आप को याद दिलाएं। I'm sorry. Yeah, just everyone's dealing, most people are dealing with a cough. I'm also dealing with mine. God is good. परमेश्वर भला है। Let me put it this way. Let me put it this way. तो मैं आपको इस तरह बताना चाहता हूँ, Thankfulness will take us closer to God, but grumbling and murmuring will take us away from God. जो हम धन्यवाद देते हैं वो हमें परमेश्वर से करीब लेकर जाएगा, लेकिन जब हम कुड़कुड़ाने लगते हैं तो हम परमेश्वर से उतना ही दूर होने लगते हैं। So thank God because it will draw you closer to the Lord and closer to His heart. आप परमेश्वर को धन्यवाद दो क्योंकि इससे आप परमेश्वर के हृदय के और नजदीक जाओगे। You know, when I went through that unbearable loss almost 3 years back, आपको पता है जब 3 साल पहले जब मैं इस दर्द से गुजरा जहाँ मैंने अपने को खो दिया, I want to say in the grace of God, I never stopped thanking God. लेकिन परमेश्वर के अनुग्रह से मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैंने कभी भी परमेश्वर को धन्यवाद देना बंद I नहीं किया। never questioned God. मैंने परमेश्वर पे कभी प्रश्न नहीं उठाया। Not for a moment did I get angry with God. कभी भी मैं परमेश्वर से गुस्सा नहीं हुआ। What kept me going was जो- the choice to thank God, rehearsing all that He had done for me, all His goodness that I had experienced in all those years. Because of one thing, I was not going to make the bad choice to grumble and murmur. लेकिन एक ही चीज़ थी जो मुझे चला रही थी, वो था कि जो परमेश्वर ने मेरे जीवन में सालों से किया है मैं उसे याद करता रहता था, दोहराते रहता था और कहता था कि सिर्फ एक चीज़ के वजह से मैं परमेश्वर के तमाम भलाइयों को कभी नहीं भूलूंगा। Can I give you a secret? क्या मैं आपसे एक सीक्रेट कह सकता हूँ? Don't tell anyone. किसी से ना कहना। Can I give you a secret? क्या एक सीक्रेट बताऊँ? Some of you are not sure, I don't know. You want a secret? The areas in which you are struggling the most, thank God most in those areas. So if you're, for example, if you're struggling with your spouse, don't run out of the house. Stay in the house and thank God for your spouse. Why are some people so excited? What is the first thing I've shared with you? पहली बात क्या थी जो मैंने आपसे कही? How many of us are going to make the good choice that in 2023 we will be a thankful people? आप में से कितने लोग चुनाव करेंगे कि 2023 में आप धन्यवाद करने वाले लोग बनोगे? Don't be led by feelings and emotions or your circumstances. Be led by the goodness of God. तो आप अपने जो भावनाएं हैं या जो परिस्थिति है उनसे आप आगे ना बढ़े, लेकिन परमेश्वर को धन्यवाद देकर आगे I बढ़े। will mention the second thing and not explain it. मैं आपसे दूसरी बात कहूंगा लेकिन आप उसे समझाऊंगा नहीं। I will go to the third thing after just mentioning the second thing. I believe 2023, the book of Revelation is going to be a very important book for us. तो मैं विश्वास करता हूँ कि जो प्रकाशित वाक्य जो किताब है बाइबल में हमारे लिए आने वाले साल में बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होने वाला I है। want to encourage the church to start reading the book of Revelation, if possible, from Jan 1st tomorrow. तो मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ कि आने वाले जो पहला हफ्ता है उसी से आप शुरुआत कर दें प्रकाशित वाक्य पढ़ना। Whether you are able to understand or not understand what you read, you start reading it by faith and God will begin to speak to you. आपको समझता है या नहीं समझता है लेकिन आप विश्वास के साथ पढ़ना शुरू करें, परमेश्वर आपको समझाएंगे। But the third thing I want to share with you, and I will close with that and lead us in a time of worship now. और जो तीसरी बात है मैं वो आपको बताना चाहूँगा, उसके बाद फिर हम आराधना करेंगे। And I somehow feel that, you know, maybe I'm speaking about our church, but I somehow feel maybe some of us have forgotten the importance of this principle.
मैं हमारी कलीसिया के बारे में बात कर रहा हूँ ऐसा नहीं है, लेकिन मैं ऐसा महसूस करता हूँ कि हम में से कई सारे लोग हैं जो इस सिद्धांत को भूल गए हैं. And can we just put that verse in Genesis 8:22 and then Galatians 6:7-9? Genesis 8:22. उत्पत्ति का 8वां अध्याय 22वां वचन Galatians 6:7-9. और गलातियों का 6वां अध्याय 7 से 9 वचन. And Genesis says this: while the earth remains, seed time and harvest, and cold and heat, and summer and winter, and day and night shall not cease. तो उत्पत्ति का 8:22 कहता है कि जब तक पृथ्वी रहेगी तब तक बोना काटना, ठंडी गर्म, रात दिन सब चलता रहेगा. You know, the principle of sowing and reaping. तो ये जो सिद्धांत है बोना और काटना, You know, Galatians 6:7-9, गलातियों का 6वां अध्याय 7 से 9, it says, God is not mocked. Whatever a man sows, this he will also reap. कहता है कि परमेश्वर धोखा नहीं दिया जा सकता. जो एक व्यक्ति बोता है वही वो काटता है. So you sow in the flesh, you will reap corruption. अगर आप शरीर में बोओगे तो आपको भ्रष्ट चीजें ही मिलेगी. But if you sow in the Holy Spirit, you will reap eternal life. लेकिन अगर आप पवित्र आत्मा में बोते हैं तो आपको अनंत काल का जीवन मिलता है. And I believe this is an encouragement for us. Let us not lose heart in doing good, for in due time we will reap if we do not grow weary. और हमें उत्साहित होना चाहिए इस वचन से. कहता है कि जो भले काम है उसे करते हुए हमने कभी भी नहीं थकना चाहिए, क्योंकि सही समय पर हम सही कटनी काटेंगे. You know, I want to encourage you, if you're not happy by the harvest or by the things that you're seeing in your life, stop blaming God and don't blame others, but ask yourself, what am I sowing in my life? What am I sowing in my marriage? What am I sowing in my family? What am I sowing in my workplace? If you're not liking what you are seeing, then you need to check what you have been sowing. अगर आपके जीवन में आप ऐसा कुछ देख रहे हो जो आपको पसंद नहीं आ रहा है, जो आपको मिल रहा है आपको पसंद नहीं आ रहा है, तो आपको उसके ऊपर प्रश्न नहीं उठाना है कि मुझे ऐसा क्यों, लेकिन आपको ये देखना है कि क्या ऐसी चीज़ें हैं जो आप अपने जीवन में बो रहे हो और जिसकी वजह से आपको ये चीज़ें देखनी पड़ रही है. How many of you all want to see God bless you with rich harvest and rich things and good things in your life? Amen. We all want to see that happen, right? कितने लोग आप में से चाहते हैं कि परमेश्वर आपके जीवन में एक अच्छा फसल लाए और अच्छा जीवन आप बिताए. And how many of you understand you always reap more than what you have sown? और आप देखोगे कि जितना आपने बोया है हमेशा आप उससे ज्यादा ही काटते That's हो. a good promise. ये एक अच्छा वादा है. So when we sow in prayer, when we sow with good deeds, God says that I will give you a rich harvest back into your life. तो जब आप प्रार्थना में और अच्छे कार्यों में बोते हो तो परमेश्वर आपको बड़ी फसल देता है. And I believe in the principle of sowing and reaping for every area and aspect of our lives. और मैं ये विश्वास करता हूँ कि जो सिद्धांत है बोना और काटना ये आपके जीवन के हर क्षेत्र में लागू होता है. Many of us by faith, just a few minutes back, you gave your Thanksgiving offering. और थोड़े समय पहले हमने हमारा जो धन्यवाद का दान है हमने परमेश्वर को दिया. I sincerely believe what you sow is what you will reap. और ये मैं विश्वास करता हूँ कि जो भी हम बो रहे हैं वही हम काटेंगे बाद में. You know, many of you have been praying for your family members to be saved. I want to tell you in the name of the Lord Jesus, if you have been sowing in prayer for your family, they will be saved. तो मैं देखता हूँ कि हम में से कई सारे लोग हमारे जो परिवार के लोग हैं उनके जीवन के लिए प्रार्थना कर रहे हैं. अगर आपने सचमुच में उनके लिए प्रार्थना किया है और कर रहे हो लगातार तो आप उनको एक दिन देखेंगे परमेश्वर के भवन में. But turn to the person next to you and say, the key is not to give up. लेकिन जो आप अपने पड़ोसी से मुड़कर कहे कि इसकी जो चाबी है वो ये है कि आप हार ना माने. Please don't give up. हार ना माने. Turn to 2 or 3 people around you and say, please don't give up doing good. 2-3 लोगों से मुड़कर कहे कि आप जो कर रहे हो उसमें आप हार ना माने. So have you been thanking God? क्या आप परमेश्वर को धन्यवाद दे रहे हो? Don't give up. तो उसे बंद ना करे. Have you been praying for your loved ones and your oikos? क्या आप अपने परिवार के लोगों के लिए ओइकोस के लिए प्रार्थना कर रहे हो? Don't give up. उसे बंद ना करे. Have you been sowing in your finances? क्या आप अपने पैसों में बो रहे हैं? Don't give up. आप उसे बंद ना करे. Have you been serving and loving your spouse and you know your spouse is not behaving how he or she should be behaving? Don't give up. Keep loving your spouse. You sow love, what will you get? अगर आपके पति या पत्नी अगर आपके साथ अच्छा बर्ताव नहीं कर रहे या अच्छे से नहीं है तो आप हार ना माने उनके ऊपर, लेकिन आप बोते रहिए. Because what you sow is what you
reap. क्योंकि आप जो बोगे वही काटोगे। I will explain more about this in the coming days. आने वाले दिनों में इसके बारे में हम और जानेंगे। 3 things I shared with you, very simple, beloved. What is the number 1 thing? 3 चीजें हमने सीखी। Number 2, read the book of, I will explain this in the coming days. Number 3, sowing. Amen. How many of us are ready to thank the Lord? Yeah. Worship team. तो हमने 3 चीजें देखी। पहला कि धन्यवाद। जो धन्यवाद देना है, हमने पहली बात वो देखी। दूसरा कि हमें आगे आने वाले दिनों में प्रकाशित वाक्य पढ़ना है। और तीसरा, जो हम बोते हैं वही हम काटते हैं। Amen. I want you to right now get ready with all your heart to thank God. तो मैं चाहता हूँ कि आप अपने पूरे हृदय से इस वक्त तैयार हो जाए परमेश्वर को धन्यवाद देने के If लिए। you're comfortable, I want to encourage you to go on your knees. अगर आपको चलता है तो आप अपने घुटनों पर आकर के भी If you're not able to आराधना go on कर your सकते हैं। knees, I want to encourage you to stand. अगर घुटनों पे नहीं जा सकते हो तो आप खड़े हो सकते This हैं। is a solemn night. ये पवित्र रात है। This is going to be a night where your first act is going to be that we are going to worship God together. तो ये ऐसी रात है जहाँ पर आपका सबसे पहला काम जो आप करने वाले हैं वो है परमेश्वर की आराधना। Amen. Let's lift our hands to God, beloved. If you're on your knees, if you're standing, I want you to take time right now to worship the Lord. आइए हम अपने हाथों को उठाए। अगर आप खड़े हैं तो अपने हाथों को उठाए, अपने घुटनों पर आए, लेकिन हम परमेश्वर की आराधना I don't want anyone to be in a hurry. Let's just stop moving around, and I just want everyone to get focused on God, because this is a time that God will bless you with His presence and God will give you a word. मैं चाहता हूँ कि कोई भी जल्दबाजी ना करे, यहाँ वहाँ घूमे नहीं, लेकिन आप परमेश्वर को ये समय दीजिए जहाँ पर परमेश्वर आपको आशीषित करेंगे इस वक्त। Now turn your eyes to the Lord. परमेश्वर की ओर अपनी आंखों को लगाओ, Lift your hearts to Him. अपने हृदय को उसकी ओर करो। Begin by remembering the goodness of God in this past 1 year and all these years. आप उन सभी बातों को याद करें जो परमेश्वर ने इस पूरे साल भर में आपके लिए किया है। Begin to thank the Lord vocally. Lift your voice and begin अपनी to thank आवाज को Him. उठाकर हम धन्यवाद देंगे परमेश्वर को। Don't feel shy, beloved. Just lift your voice and begin to declare the goodness of God. आप शर्माए नहीं, लेकिन परमेश्वर की ओर अपनी आवाज को उठा करके धन्यवाद करें। God has been good to you, beloved. परमेश्वर आपकी ओर भला रहा है। God has been good to your family. आपके परिवार की ओर भला रहा है। He has not rewarded us according to our sins or our iniquities. उसने हमारे पापों को सजा नहीं दी है। He has been merciful to us. वो हमारी ओर दयावान रहा है। He has been good to us. वो हमें हमारी ओर भला रहा है। He has poured out His blessings upon our lives and our families. उसने अपने आशीषों को हमारे और हमारे परिवार के ऊपर उंडेला है। He gave us His greatest gift of love, His Son Jesus Christ. उसने अपना पुत्र जो है उसका हम बलिदान, उसका वरदान हमें दिया He है। gave us His salvation. उसने हमें उद्धार दिया है। Let's lift our hands, beloved, and thank God. This is a moment between you and the Lord, beloved. आइए हम अपने हाथों को उठा करके परमेश्वर को धन्यवाद दें। आपके और परमेश्वर के बीच की बात है। I don't want to say anything more right now for a few moments. I want you to lift your hands and lift your voice and begin to thank Him. Oh, we worship you, Lord. We thank you for your goodness. तू भला है, तेरी करुणा सदा की है, तेरा वचन सच्चा है, तेरी आशीषें भरपूर है, तेरा वचन सच्चा है प्रभु। धन्यवाद तेरी उपस्थिति के लिए, धन्यवाद तेरी आत्मा के लिए, धन्यवाद प्रभु, तू हर समय हर पल हमारे साथ है, हमारे दुख में तू हमारे साथ है, हम जब कमजोर है तू हमारे साथ है, जब हम अकेला महसूस करते तू हमारे साथ है, जब कोई नहीं है तू हमेशा हमारे साथ है, तू हमारी शांति है, तू हमारी ताकत है, तू हमारी सांत्वना है, तू हमारी बुद्धि है, तू हमारी ताकत है, तू हमारा सामर्थ्य है प्रभु, तू हमारा मार्गदर्शक है, रातों में तू हमारी उजाला है प्रभु, अंधकार में तू हमारा उजाला है। आओ प्रियो, मेरी आवाज को उठाकर परमेश्वर को धन्यवाद दे, अपने हाथों को उठाकर हम परमेश्वर को धन्यवाद दे। वो भला है, उसकी करुणा सदा की है, उसका वचन सच्चा है। Lord, we want to thank you, God. You've been
good to us. धन्यवाद प्रभु, तूने हमने इतना दिया, हमारे प्रार्थनाओं से अधिक तूने हमें दिया है। जब हम वफादार नहीं थे, तू हमेशा वफादार रहा प्रभु। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। जो हमने नहीं मांगा उससे भी बढ़कर, हमारे सोच से भी बढ़कर तूने हमें दिया है प्रभु। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। जो तूने हमें हमारे पापों से हमें मुक्त किया। जो भी बातें आपकी ओर से नहीं थी, इस रात को वो समाप्त हो गए हैं। हम घोषणा करते हैं, जो बातें आपकी ओर से नहीं है, जो बातें आपकी ओर से नहीं है, वो बंधन, वो यादें, वो सभी बातें वो आज खत्म हो चुकी है प्रभु यीशु मसीह के नाम से। ये नया साल एक नई शुरुआत है, नई शुरुआत है प्रभु यीशु मसीह में। हम धन्यवाद देते प्रभु, हम धन्यवाद देते प्रभु कि तू हमारे साथ है। आने वाले दिनों में हम तेरी उपस्थिति को महसूस करेंगे, हम तेरे सामर्थ को महसूस करेंगे, हम तेरी महिमा को देखेंगे। हालेलुया, हालेलुया। अपने आवाज को उठाए प्रियो, क्योंकि हमारी स्तुतियों के ऊपर परमेश्वर विराजमान होता है। ओ काराबा शांदाला काराबा। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद यीशु, तू भला परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हमारी आवाज को उठाए प्रियो, क्योंकि वो हमारी स्तुति पर विराजमान है, हमारी स्तुति पर विराजमान है, वो हमारे परिवार में विराजमान है। हालेलुया। ओ धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद यीशु। ओ मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे। Lift your voice and sing it. मैं हाथ उठाकर मैं गाऊंगा, मैं हाथ उठाकर मैं गाऊंगा, यीशु तेरा नाम। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे। आदर और महिमा हो तेरी, तू ही हमारा खुदा। पूरी हो तेरी मर्जी। आओ हम प्रार्थना करें, तेरा राज्य हो, आदर और महिमा हो तेरी। हालेलुया, तू ही हमारा खुदा। पूरी हो तेरी ही मर्जी मेरे जीवन में, मेरे परिवार में। आदर और महिमा, फिर से हम गाए, आदर और महिमा हो तेरी। शिखारापा ही हमारा खुदा। लिफ्ट इट अप, लिफ्ट इट अप। पूरी हो तेरी ही मर्जी, तेरी महिमा आए, तेरा राज्य। मैं हाथ उठाकर, मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम। That's my prayer, Lord. मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम। ओ हाथ उठाकर मैं गाऊं, हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे। Oh, I believe, मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे। ऊंचा हालेलुया
उठाकर हम गाए हालेलुया होसाना हालेलुया होसाना हालेलुया होसाना। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम ऊंचा। मैं हाथ उठाकर आदर और महिमा हो तेरी। Amen. Hallelujah. आए तेरा राज मेरे जीवन में, आदर मेरे परिवार में हो तेरी मर्जी। आए तेरा राजा। प्रियो, मैं अभी चाहता हूं, ऐसा महसूस कर रहा हूं कि हम इस समय अपने परिवार के लिए प्रार्थना करें। परमेश्वर परिवारों का और पीढ़ियों का परमेश्वर है। परमेश्वर का हाथ तुम्हारे परिवार के ऊपर है। लेकिन जैसे आप अटल खड़े रहोगे परमेश्वर में, उसके अनुग्रह में, उसके सामर्थ्य में, आप देखोगे परमेश्वर की महिमा को, परमेश्वर के उद्धार को अपने परिवार में। Tonight is the night we take our stand, beloved. How many of you all have decided that enough is enough? My family belongs to the Lord. My family belongs to the Lord. Come on now. I want you to take a stand right now. Lift your hands and say, God, I'm believing you for the salvation of my family. इस समय हम खड़े होकर हम प्रार्थना करें। ये युद्ध का समय है। चाहे दुनिया कुछ भी करे, लेकिन हमने अपना जगह ले लिया परमेश्वर में। हमने अपना स्तर, हम अपने जगह को ले लिया है। We have made our stand in the Lord. Come on now, begin to pray for your family. Lift your hands, lift your voice, and say, God, you touch my mom, you touch my dad, you touch my brother, you touch my sister, you touch my husband, my wife, my children. Come on, beloved. Come on, begin to pray. प्रार्थना करें अपने परिवार के लिए, प्रार्थना करें। हालेलुया। परमेश्वर करोबा शिखरेबे, तेरी महिमा उतार आए मेरे परिवार में, तेरा उद्धार आए मेरे परिवार में, तेरा उद्धार आए मेरे परिवार में, तेरा उद्धार आए, तेरा राज आए मेरे परिवार में। प्रभु, ये आने वाले साल में, ये जो नया साल में हम आए हैं, हम देखना चाहते हैं हमारा पूरा परिवार प्रभु के भवन में आकर तेरी आराधना करते हुए। प्रभु, ये साल में प्रभु तू महान कार्य करने वाला परमेश्वर है। हमारे परिवार में एक नया कार्य कर प्रभु। हमारे परिवार में तेरा राज आए और तेरी इच्छा हो प्रभु। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आओ हम विश्वास से हाथ उठाकर परमेश्वर को धन्यवाद दें हमारे परिवार के लिए कि उसने हमारे परिवार में उद्धार लाया है। हालेलुया। धन्यवाद दो प्रियो, धन्यवाद दो। डोंट डाउट,
डोंट डाउट, शंका मत करो, धन्यवाद दो। शंका मत करो, विश्वास रखो, विश्वास करो अपने परिवार के लिए। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा यीशु तेरा नाम। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा यीशु तेरा नाम ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। प्रभु, इस समय हम धन्यवाद देते प्रभु, जो तूने हमारे जीवन में किया है प्रभु। ये 2022 में तूने हमें संभाल कर रखा। इतने सालों में प्रभु तेरे हाथों में तूने हमें रखा है। हमारे आबा पिता, हम धन्यवाद देते तेरे प्यार के लिए, तेरे पुत्र यीशु मसीह के लिए, तेरी आत्मा के लिए, तेरे वचनों के लिए। हमारी प्रार्थना ये है कि आने वाले साल में हमारे जीवन के हर एक क्षेत्र से तुझे महिमा मिले। खास कर हमारे अंदर वो जुनून डाल, वो आग डाल तेरे सुसमाचार को प्रचार करने के लिए, चेले बनाने के लिए, और घर कलीसिया और कलीसिया स्थापित हो जाए प्रभु। प्रभु, हम तेरी भलाई को प्रकट करते हैं जब हम सुसमाचार बांटते हैं प्रभु, जब हम लोगों को बताते हैं कि तू तो ना महान और भला परमेश्वर है। हम देखें प्रभु तेरी महिमा को हमारे जीवन के हर एक क्षेत्र में। हम धन्यवाद देते हैं 2023 के लिए, ये नया साल के लिए प्रभु। हम धन्यवाद देते प्रभु कि तूने अच्छी बातें रखी हैं हमारे लिए प्रभु। जाए संसार में जो कुछ हो जाए, तूने हमारे साथ एक वाचा बांधी है। तेरे सभी प्रतिज्ञाएं हाँ और आमीन है, और तू हमारे साथ है प्रभु। धन्यवाद प्रभु, क्योंकि तू हमारे साथ है, हम नहीं डरेंगे। चाहे जो कुछ आए, हमारी विपरीत आए, हम फिर भी खड़े रहेंगे प्रभु, क्योंकि तू हमारा बल है, तू हमारा ताकत है, तू हमारी शांति, हमारी सांत्वना है, हमारा मार्गदर्शक है। 2023 में हम देखेंगे तेरी महिमा को, हम देखेंगे भली बातों को प्रभु, हम देखेंगे तेरी आशीषों को, और हमारा जीवन और भी दूसरों के लिए आशीष का कारण बने प्रभु। हालेलुया। सभी परिवार जो यहाँ पर है और जो ऑनलाइन है, हम सभी को आशीषित करते प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रभु। प्रभु उठो और चमको अपने लोगों के ऊपर। द लॉर्ड ब्लेस यू, द लॉर्ड मेक हिज फेस शाइन अपॉन यू एंड गिव यू पीस। धन्यवाद प्रभु इस नए साल के लिए, और सबसे अधिक धन्यवाद तू हमारे साथ है। अपने लोगों को आशीषित कर, और प्रभु हमारी संगति को आशीषित कर, और सभी लोग सही सलामत घर पर पहुंच जाए प्रभु, ये हम प्रार्थना करते। आओ आखिरी बार अपने हाथ उठाकर हम परमेश्वर को धन्यवाद दे और महिमा दे। आओ अपने आवाज को उठाकर परमेश्वर को धन्यवाद दे, अपने आवाज को उठाकर परमेश्वर को धन्यवाद दे। प्रियो, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। सारा महिमा, सारा आदर हम आप ही को देते हैं। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से करते, और सभी लोग कहे आमीन। आओ ताली बजाकर परमेश्वर को धन्यवाद दे, जोर से हम परमेश्वर को महिमा दे। हालेलुया। भला परमेश्वर, महान परमेश्वर। God bless you. Amen. Wishing all of you a blessed and a fruitful new year. Happy New Year to all of you. God bless you.